हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 2। द एक्सटैटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण्य अश्रु सर्वभेद देह है पुल के व्यापिता। हास्य कांद नाचे गाए उठी इति उति धाय क्षण भूमि पड़िया मूर्छिता। So there were different transformations of the body of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Being stunned, trembling, perspiring, fading away of color, weeping, and choking of the voice. In this way, his whole body was pervaded by transcendental joy. As a result, sometimes Chaitanya Mahaprabhu would laugh, sometimes cry, sometimes dance, and sometimes sing. Sometimes he would get up, run here and there, and sometimes fall on the ground and lose consciousness. So, विभिन्न प्रकार के वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं भगवान कृष्ण के विरह में। तो ये सारे अष्ट सात्विक विकार को अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह को महसूस कर रहे हैं। हास्य कांदे नाचे गाए इति उति धाय। So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, 8 kinds of transcendental changes taking place in the body are described. भक्ति रसामृत सिंधु में सात्विक विकार कृष्ण के प्रेम के कारण जब किसी भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं तो ऐसे 8 सात्विक विकारों का वर्णन किया गया है। स्तंभ स्तंभ means being stunned refers to the mind's becoming transcendently absorbed। दिव्य रूप से जब समाधिष्ठ हो जाता है किसी का मन समाधि की अवस्था में जाने पे जो महसूस होता है वो स्तंभ। In that state, the peaceful mind is placed on the life hairs and different bodily transformations are manifest. These symptoms are visible in the body of an advanced devotee. When life becomes almost inactive, it is called stand. So, जब शांत मन प्राण वायु के ऊपर आधारित हो जाता है तो बहुत ही जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं वो इस प्रकार की अवस्था महसूस करते हैं जिसमें जीवन लगभग जड़ प्राय हो जाता है ऑलमोस्ट इनएक्टिव। The emotions resulting from this condition are joy, fear, astonishment, moroseness and anger। ये स्तब्ध ये स्टंड का जो विकार है इस स्थिति में इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। जॉय फियर आनंद डर आश्चर्य मोरोसनेस एंड एंगर क्रोध और शोक। ये सब ये 5 प्रकार के भाव एक साथ प्रकट होते हैं तो उस अवस्था में स्तब्ध हो जाता है स्तंभ। In this condition the power of speech is lost and there is no movement in the hands and legs। Otherwise being stunned is a mental condition। अगर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो उस अवस्था में जब ये स्तब्ध अवस्था आती है स्टंड तो उसको मेंटल कंडीशन बोला जाता है यानी पागल हो गया व्यक्ति। Many other symptoms are visible on the entire body in the beginning। These are very subtle but gradually they become very apparent। When one cannot speak naturally, one's active senses are arrested and the knowledge acquiring senses are rendered inoperative। सर्वेंद्रियाणाम विजय जो गोस्वामी जैसे बताते हैं सारे समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस हृदय में उपस्थित तो सारी इंद्रियां इनऑपरेटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है कम ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी इज मेंशन्ड इन द भक्ति रसामृत सिंधु एज ए रिजल्ट ऑफ a special kind of fear, anger and joy। एक विशेष प्रकार का भय
क्रोध और आनंद जब तीनों एक साथ आता है तो कंपन महसूस करता है। दिस इज कॉल्ड वेपथु और कंपन। वेपथु शरीर में रोमहर्ष से चाहिए थे। अर्जुन ने भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन अर्जुन का वो एक्सपीरियंस करना वो भौतिक भावना के कारण था। बट श्री चैतन्य महाप्रभु इज एक्सपीरियंसिंग because of love for Krishna. When the body begins to perspire because of joy, fear, and anger combined, this is called Sweda. Vaivarnya is described as a change in the bodily color. It is caused by a combination of moroseness, anger, and fear. When these symptoms, emotions are experienced and complexion turns pale and the body becomes lean and thin, Ashru is explained in the Bhakti Samra Sindhu as a combination of joy, anger, and moroseness that causes water to flow from the eyes without effort. आनंद, क्रोध और शोक मिल करके जब जो विकार उत्पन्न होता है उसको अश्रु बोलते हैं. Without efforts, automatically water comes from the eyes. When there is a joy and there are tears in the eyes, the temperature of the tears is cold. But when there is anger, the tears are hot. ये भी ये विज्ञान है पूरा. जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जब क्रोध के कारण आंसू आते हैं वो गर्म होते हैं. In both cases, the eyes are restless, the eyeballs are red, and there is itching. These are all symptoms of Asru. When there is a combination of moroseness, astonishment, anger, joy, and fear, there is a choking in the voice. Gadgad इसको बोलते हैं. This choking is called Gadgad. Sri Chaitanya Mahaprabhu refers to Gadgad Rudhyagira or a faltering voice in the Bhakti Samrit Sindhu. Pulaka is described as joy, encouragement, and fear. When these combine, the hairs on the body stand on end, and this bodily state is called Pulak. So ये 8 प्रकार के सात्विक विकार यहाँ पे बताए गए हैं. कौन कौन से स्तंभ, अष्ट सात्विक विकार. स्तंभ, वैवर्ण्य, स्तंभ, कंप, परश्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, सर्वभेद देहे हैल पुलक व्यापिता. मूर्छाय हैला साक्षात्कार, उठी करे हुंकार, कहे ये आइल महाशय, कृष्णेर माधुरी गुणे, नाना भ्रम है मने, श्लोक पढ़ी करय निश्चय. As the Chaitanya Mahaprabhu was thus unconscious, he happened to meet the Supreme Personality of Godhead. Consequently, he got up and immediately made a tumultuous sound, very loudly declaring, "Now Krishna, the great personality, is present." In this way, because of Krishna's sweet qualities, Chaitanya Mahaprabhu made different types of mistakes in his mind. Thus, by reciting the following verse, he ascertained the presence of Lord Krishna. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हो गए, तो उस समाधि की अवस्था में he met Supreme Lord, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है. And consequently he got up and immediately made a tumultuous sound. और अचानक से जब कृष्ण का साक्षात्कार हुआ उस स्तंभ की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में, तो तुरंत उठ करके जोर से हुंकार करना चालू कर दिए, ये बोलते हुए, "नाउ कृष्ण द ग्रेट पर्सनैलिटी इज प्रेजेंट." कहे, "ए आइला महाशय, ए आइला महाशय, कृष्णेर माधुरी गुणे नाना भ्रम है मने, श्लोक पढ़े करय निश्चय." In this way, because of Krishna's sweet qualities, कृष्ण का साक्षात्कार करना मतलब कृष्ण के जो मधुर गुण हैं उनका साक्षात्कार प्राप्त होते ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ब्रह्म में उनका मन हो गया. मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन हिज माइंड, और इस प्रकार का श्लोक उच्चारण करना चालू कर दिए. मारः स्वयं नु मधुरतुति मंडलम नु, माधुर्यम् एव नु मनु नयनामृतं नु,
वेणीमृजूनु मम जीवितवल्लभो नु कृष्णोऽयम् अभ्युदयते मम लोचनाय. In the attitude of Sri Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed the gopis. श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों को इस प्रकार से एड्रेस करते हैं. My dear friends, has Krishna, Cupid personified, who has the effulgence of a kadamba flower, who is sweetness itself, the nectar of my eyes and mind, he who loosens the hair of the gopis, who is the supreme source of transcendental bliss, and my life and soul, has that Krishna come before my eyes again. श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से एड्रेस करते हैं गोपियों को कि हे मेरे प्रिय सखियां, क्या कृष्ण जो काम स्वरूप हैं, कदम्बा के फूल की तरह इनका तेज है, फलजन, जो स्वीटनेस personified है, माधुर्यम, who is himself माधुर्यम, मनः नयन अमृतम नु वेणीमृचः नु मम जीवितवल्लभः नु कृष्ण अयम अभ्युदयते मम लोचनाय. So ऐसे कृष्ण, the nectar of my eyes and mind, नेत्र और मन के अमृत, the supreme source of transcendental bliss, my life and soul, ओ कृष्णा मेरे आंखों के सामने फिर से आ गए. ये भी विलोम मंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से लिया गया है. कि भाई साक्षात काम द्युतिपिम मूर्तिमान, कि माधुर्य स्वयं मूर्तिमंत, कि बा मनो नेत्रोत्सव, कि बा प्राण वल्लभ, सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद. Chaitanya Mahaprabhu then began to talk like this. Is Cupid personified present with the effulgence and reflection of the Kadamba tree? Is he the same person, personified sweetness, who is the pleasure of my eyes and mind, who is my life and soul? Has Krishna actually come before my eyes? So, मूर्छित होकर जब इस प्रकार से गिरे, कृष्ण का साक्षात्कार होते ही ऐसे वर्णन कर रहे हैं. क्या ये वही कृष्ण है जो कि मेरे जीवन और आत्मा है, जो मेरे मन और आंखों नेत्रों के अमृत हैं? One who is Cupid personified, is he the same person? ऐसे प्रकार से वर्णन कर रहे. गुरु नाना भावगण शिष्य प्रभुर तनु मन, नाना रीते सतत न चाय, निर्वेद विषाद दैन्य चापल्य हर्ष धैर्य मन्यु, ए नृत्य प्रभुर काल जाय. As the spiritual master chastises the disciple and teaches him the art of devotional service, so all the ecstatic symptoms of Lord Chaitanya Mahaprabhu, including despondency, moroseness, humility, restlessness, joy, endurance, and anger, instructed his body and mind. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his time. जिस प्रकार से गुरु शिष्य को डांटता है और उसको शिक्षा देता है भक्ति योग सिखाने के लिए, तो इसी प्रकार से जितने भी सिम्टम्स, विकार उत्पन्न हो रहे हैं अलग अलग, इसी चैतन्य महाप्रभु के मन और शरीर को सिखा रहे हैं, लाइक इज ए स्पिरिचुअल मास्टर, और इस प्रकार से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं. चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णमृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाय सुने परम आनंद. He also passed his time reading the books and singing the songs of Chandidas and Vidyapati. तो कृष्ण कर्णामृत विलोमंगल ठाकुर का ग्रंथ सुनते पढ़ते, और साथ ही साथ में चंडीदास एंड विद्यापति के भी बुक्स हैं, जिसमें कृष्ण के अनेकों अनेकों दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए सॉन्ग्स हैं, उसको भी महाप्रभु पढ़ने में सुनने में व्यतीत करते समय. And listening to the quotations from the Jagannath Vallabh Natak, Krishna Karnamrit and Gita Govinda. Thus, in the association of Sarup Damodar and Raya Ramanand,
Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights chanting and hearing with great pleasure. तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के संग में इस प्रकार से दिन और रात अपना समय व्यतीत कर रहे थे श्रवण और कीर्तन, कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन। पुरीरवात्सल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध सख्य गोविंद गोविंदा आद्येर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रसानंद ये चारि भावे प्रभु वसा। Among his associates, Lord Chaitanya Mahaprabhu enjoyed paternal loving affection from Paramanand Puri. महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे उसमें से परमानंद पुरी से जो है वात्सल्य रस प्राप्त किए। रामानंद राय के द्वारा फ्रेंडली अफेक्शन, सख्य रस, एंड गोविंद के द्वारा दास, गोविंद उनके थे, दास थे। Unalloyed service he received and others, and humors of conjugal love with Gadadhar Jagdanand Swarup Damodar, और माधुर्य रस के जो आस्वादन गदाधर पंडित जगदानंद और स्वरूप दामोदर के साथ प्राप्त किए। श्री चैतन्य महाप्रभु enjoyed all these four mellows and thus he remained obliged to his devotees. इस प्रकार से ये चारों रस को आस्वादन करते हैं अपने इन भक्तों के साथ मिलकर और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहते हैं। So Paramanand Puri is said to have been Uddhava in Vrindavan. Paramanand Puri उद्धव के अवतार हैं। His affections with Sri Chaitanya Mahaprabhu were on the platform of paternal love. So कृष्ण लीला में हालांकि उद्धव उनके सखा हुए, लेकिन गौर लीला में उद्धव परमानंद पुरी बन के आए, उनके गुरु बन के आए, गुरु वर्ग, तो इसलिए पैटर्नल लव, वात्सल्य प्रेम प्रदान किए। This was because Paramanand Puri happened to be the god brother of the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु के गॉड ब्रदर, गुरु भाई थे, and spiritual uncle चैतन्य महाप्रभु. Similarly, Ramanand Rai, who is considered an incarnation of Arjuna, and by some an incarnation of Visakha Devi, enjoyed unalloyed fraternal love with the Lord. Unalloyed personal service was enjoyed by Govinda and others in the presence of his most confidential devotees like Gadadhar Pandit Jagdanand Swarup Damodar. Chaitanya Mahaprabhu enjoyed the ecstatic conditions of Srimati Radharani in her conjugal relationship with Krishna. Absorbed in these four transcendental melodies, Chaitanya Mahaprabhu resided in Jagannath Puri, feeling very much obliged to his devotees. So इस प्रकार से कृष्ण लीला के अलग अलग भक्त महाप्रभु के साथ को वो चारों प्रकार के रस का स्वादन प्रदान किए। लीला सुख मर्त्य जन तारहय भावोदगम ईश्वर से कि यह विस्मय ताहे मुख्य रसाश्रय आया छेन महाशय ताते है सर्व भावोदय। लीला सुख बिल्व ठाकुर का एक नाम लीला सुख भी, इनका पूर्व जीवन का नाम लीला सुख था। संन्यास जब ले लिया उसके बाद बिल्व ठाकुर के नाम से विख्यात हुए। So Leela Sukha was an ordinary human being, yet he developed many ecstatic symptoms in his body. What then is so astonishing about these symptoms being manifest in the body of the Supreme Personality of God? In the ecstatic mood of conjugal love, Sri Chaitanya Mahaprabhu was on the highest platform. Therefore, all the exuberant ecstasies were naturally visible in his body. So, बिल्वमंगल ठाकुर पूर्व जीवन में एक साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन वो भी कृष्ण की कृपा से पूर्ण समर्पण जब किए तो उनके भी शरीर में वो कृष्ण के प्रेम के ऐसे अद्भुत विकार को महसूस कर पाए। Then what to speak of श्री चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार के दिव्य अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। In the ecstatic mood of conjugal love, Sri Chaitanya Mahaprabhu was on the highest platform.
सो माधुर्य रस के भाव में रहने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु आ, आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में थे, इसलिए अन्य जितने भी आ, भाव हुए वो स्वाभाविक रूप से उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे. So Leela Sukha is Vilva Mangal Thakur Goswami. He was a South Indian, a Brahmin, and his former name was Silhana Mishra. When he was a householder, he became attracted to a prostitute named Chintamani, but eventually he took her advice and became renounced. Thus, he wrote a book named Santi Shataka. Later, by the mercy of Lord Krishna and the Vaishnavas, he became a great devotee. Thus, he became famous as Bilmangal Thakur Goswami. On that elevated platform, he wrote a book named Krishna Karnamrit, which is very famous amongst Vaishnavas. Since he exhibited so many ecstatic symptoms, people used to call him Leela Sukh. Oh, लीला सुख नाम इसलिए उनको मिला था. उनका पूर्व नाम शांति शतक था, सॉरी, सिलहन मिश्रा था. बाद में जब वो when he became a great devotee, he was known as लोमंगल ठाकुर. लेकिन अ, अनेकों प्रकार के एक्सटैटिक सिम्टम्स मैनिफेस्ट करने के कारण उनका नाम लोग उनको लीला सुख के नाम से भी जानते थे. पूर्वे ब्रज विलासे जयति न अभिलाषे यत्ने आस्वादन हाइला श्री राधार भावसार आपने करी अंगीकार से तीन वस्तु आस्वादिला. So during his previous pastimes in Vrindavan, Lord Krishna desired to enjoy the three different types of ecstasy, but despite great endeavor, he could not taste them. Such ecstasies are the monopoly of Srimati Radharani. Therefore, in order to taste them, Sri Krishna accepted the position of Srimati Radharani in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कृष्ण लीला के दौरान वृंदावन में भगवान कृष्ण ये इन अद्भुत भावों को जो श्रीमती राधा रानी स्पेशली टेस्ट करते आस्वादन करते थे, उसको टेस्ट करना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे कि जो भाव हैं, एक्सटेसीज हैं, ये श्रीमती राधा रानी के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में, मोनोपोली ऑफ श्रीमती राधा. इसलिए उनको आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करना पड़ा. एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज. गोपियों के पद चिन्हों में पालन करने के बाद ही अन्य कोई व्यक्ति भी ये माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए योग्य बन पाए, इंक्लूडिंग लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ. आपने कर आस्वादन सिखाइल भक्त गणे प्रेम चिंता मनिर प्रभु धनी नाही जाने स्थान स्थान जारे तारे कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि. By personally tasting the mellows of love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu taught his direct disciples the process. So Chaitanya Mahaprabhu is a wealthy capitalist possessing the touchstone of love of God, not considering whether one is a proper or improper recipient. He gives his treasure to anyone and everyone. Thus he is the most munificent. So खुद व्यक्तिगत रूप में कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, स्पेशली डायरेक्ट डिसाइपल्स, इन भक्तों को ये आस्वादन करने की शिक्षा प्रदान की. श्री चैतन्य महाप्रभु इज अ वेल्दी कैपिटलिस्ट possessing the touchstone of love of God. कृष्ण प्रेम के अद्भुत भाव को धारण करने वाले चैतन्य महाप्रभु एक कैपिटलिस्ट, प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, इज धनी इन दिस वे. इसलिए सामने वाले व्यक्ति के पात्रता और अपात्रता पे विचार किए बिना वो उनको भी ट्रेजर प्रदान करते हैं. ट्रेजर टू एनीवन एवरीवन, thus he is most munificent.
इसलिए दाता शिरोमणि हो गए। तारे कैला दान, जा रे तारे कैला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। बट वन हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ बेगिंग। भिखारी भी होते हैं, तो जो बहुत ही मुनिफिशियंट वो होते हैं, दाता, चैरिटी देने वाले, तो दाता शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वो लोग पात्र अपात्र विचार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई कितना उत्सुक तरीके से आके मांग रहा है, वो देखते हैं, विदाउट कंसिडरिंग दियर क्वालिफिकेशन। श्री चैतन्य महाप्रभु's capital is the touchstone of love of Godhead, and consequently, he is a great honor of that transcendental treasure. After making unlimited amounts of gold, the touchstone remains the same. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the distributing love of Godhead unlimitedly, still remains the supreme honor of the transcendental opulence. His devotees who learned it from him also had to distribute it more efficiently all over the world. This Krishna consciousness movement, following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his confidential devotees, is also trying to distribute love of Godhead all over the world through the chanting of the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great capitalist of love of God, कृष्ण प्रेम के महान धनी, बिना विचार के पात्र पात्रता पे प्रेम धन प्रदान करने के बावजूद भी he always remains the wealthiest capitalist of love of God. और चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, जो इस कृपा को प्राप्त करते हैं, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जगत में, विश्व में, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के द्वारा लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदान करें। एक गुप्त भाव सिंधु ब्रह्म न पाए बिंदु, इन धन विलाइल संसारे, ऐसे दयालु अवतार ऐसे दाता नहीं यार, गुण के हनारे वर्णि पारे। So no one, not even Lord Brahma, can ascertain or even taste a drop of this confidential ocean of ecstasy. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, out of his causeless mercy, has distributed this love of God at all over the world. Thus, there cannot be any incarnation more munificent than Sri Chaitanya Mahaprabhu. There is no greater donor who can describe his transcendental qualities. यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इस प्रकार के अद्भुत कृष्ण प्रेम के भाव को के इसके भाव का एक बूंद भी टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी हेतु की कृपा से इसी प्रेम को पूरे विश्व में प्रदान की। इसलिए कोई अन्य अवतार इतना ज्यादा दयालु और दानी नहीं हो सकता है। देयर कैन नॉट बी ग्रेटर डोनर, इससे बड़े डोनर और कहीं नहीं मिल सकते हैं। इसलिए उनके दिव्य गुणों को कौन वर्णन कर सकता है। एक गुप्त भाव सिंधु ब्रह्म न पाए बिंदु, हीन धन बिलाइल संसारे, ऐछे दयालु अवतार ऐछे दाता नहीं यार, गुण के नारे वर्णि पारे। कही बार कथा नाहे, कही लेके न बुझाए, ऐछे चित्र चैतन्य रंग, सेई से बुझिते पारे, चैतन्य कृपा जाने, है तार दासानु दास संगा। चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार,
तेहो थोइल रघुनाथेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलु, ताहा इहा विस्तारिलु, भक्त गण दिलु एहि भेटे। यदि केहा हे न काय ग्रंथ कैल श्लोक माय, इतर जने नारी पे पूछिते, प्रभु रई आचरण से करि वर्णन, सर्वचित्त नारी आराधिते। So, ये गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्म न पाए एक बिंदु, इन धन विलाइल संसारे, ऐसे दयालु अवतार ऐसे दाता नाहियार, पूर्ण के हनारे वर्ण बारे। कही बार कथा नाहे कहिले के न बुझाए, ऐसे चित्र चैतन्य रंगा, से बुझीते पारे चैतन्य कृपा जारे, है तार दासानु दास संगा। Such topics are not to be discussed freely, because if they are, no one will understand them. Such are the wonderful pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And to one who is able to understand, Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown mercy by giving him the association of the servant of his own servant. So, कई बार कथा ना है, कहीं लेके है ना बुझा है। Such topics जिसका वर्णन या जिस अध्याय में किया जा रहा है, जिन विषय वस्तुओं का, इस प्रकार के विषय वस्तुओं का वर्णन करना योग्य नहीं है, उचित नहीं है ऐसे पब्लिक में। क्यों? क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता। क्या समझेगा कोई? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे दिव्य लीलाएं हैं, उन उनकी कृपा के पात्र जो हैं वो इसको समझ सकते हैं। और महाप्रभु ऐसी कृपा कैसे प्रदान करते हैं? है तार दासनु दास संगा, by giving him the association of the servant of his own servant. अपने दास के दासों का संग दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु किसी इस भौतिक संसार के बद्ध जीवात्मा के ऊपर कृपा कर सकते हैं, करते हैं जब, तो ऐसा व्यक्ति when he becomes the servant of श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसा व्यक्ति फिर समझ सकता है, इसको एक्सेप्ट कर सकता है, समझ सकता है। And also, maybe when he receives full mercy, so he can release it also. उसको आस्वादन भी कर सकता है। Otherwise, there is no other way, और कोई तरीका नहीं। इसको बोलते हैं रसिक भक्त। रसिक भक्त जो है, डायरेक्ट रस में डूबने से कोई नहीं बन पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। दास अनुदास संग के बिना nobody can become a रसिक भक्त। ये फिर कृष्ण के प्रेम के भाव को आस्वादन कर नहीं सकता है। इसलिए ऐसे अनफॉर्चुनेट डिवोटीज जो दास दास दासानुदास एसोसिएशन ऑफ द डियर सर्वेंट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको त्याग देते हैं और डायरेक्ट कृष्ण प्रेम के रस का आस्वादन करना चाहते हैं, करने का विफल प्रयास करना चाहते हैं। दे आर नोन एज सहिजियस, उनको सहिजिया बोला जाता है। और वास्तविक भाव को वो कभी भी आस्वादन नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये दास दासानुदास करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, दास हैं, उनको समर्पण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। तो इस माध्यम से वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। Then they become eligible to taste these mellows of pure love of Krishna. So an ordinary person cannot understand the transcendental ecstasies in the mood of Srimati Radharani.
Unfit persons who try to understand them are perverted into the Sahjiya, Baul, and other sampradayas. Thus, the teachings are perverted. Even learned scholars in the academic field cannot understand the transcendental bliss and ecstasy exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pure devotees. One must be fit to understand the purport of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities. तो कोई भी व्यक्ति इस संसार का श्रीमती राधा रानी के भावों को समझ नहीं सकता है, उनका डायरेक्ट आश्रय लेकर के नहीं समझ सकता है। दास दासना दासानुदास संग के माध्यम से ही समझ सकता है। जो व्यक्ति उनको अपने खुद के प्रयास से समझने का प्रयास करता है, खुद के बल पे डायरेक्ट अप्रोच करके समझने का प्रयास करता है, वो परवर्टेड इमोशंस को ही प्राप्त कर सकता है। उसको सहजिया, बाउल या अन्य प्रकार के संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और उनकी जो शिक्षाएं होती हैं वो परवर्टेड हो जाती हैं। परवर्टेड का अर्थ होता है विकृत हो जाती है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुरूप नहीं रह पाते। फिर जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस किए और उनके सठ गोस्वामी फॉलोवर्स और फिर उनके डिसिप्लिक सक्सेशन में, उस प्रकार के भाव को आस्वादन कभी भी वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं जो इस गुरु शिष्य परंपरा को बाईपास करके डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के भावों को आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शब्दों में इसको बोलते हैं लिकिंग द हनी फ्रॉम आउटसाइड द बॉटल। बॉटल जो हनी का बनी होता है उसको बाहर से चाटने का प्रयास करना। तो हालांकि हनी है, शहद दिख रहा है, बट बाहर से कोई इसको चाटने का प्रयास करेगा, यू कैन नॉट टेस्ट इट। तो इसी प्रकार से जो सहजिया प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो डायरेक्ट इन भावों को प्रदान करने वाले कार्य हैं, सच एज चैंटिंग द होली नेम एंड कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, उनका ध्यान करना, उसको करने का प्रयास करते हैं। सो उनका ये प्रयास उसी तरह हो जाता है जैसे बाहर से शहद के बॉटल को लीक करने का प्रयास। देयर विल बी नो टेस्ट, भगवान जी बोलते हैं लेक्चर में। ऐसे अनेकों लोग हुए हैं पास्ट में, प्रेजेंट में भी ऐसे अनेकों लोग प्रयास करते हैं bypassing the disciplic succession enunciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Those uh, unfit persons known as Sahjiya, Paul, and many other Apasampradayas, they try very hard to release the mellows of devotional service, love of Godhead, Krishna, which were experienced by Sri Chaitanya Mahaprabhu. So बाहरी रूप से वो इस प्रकार से प्रकट जरूर कर सकते हैं सिम्टम्स को, but actually inside their heart there is no such relishment of devotional feelings. So one must be fit to understand the purport of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities. Okay. चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेरा भांडार तेहु थुला रघुनाथेरा कंठे तहाँ किछु जे सुनी लूं तहाँ यहाँ विस्तारे लूं भक्त गणे दिलूं यही भेटे। कविराज गोस्वामी ये बोल करके फाइनली वर्णन कर रहे हैं। The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are the topmost of jewels. They have been kept in the storehouse of Sarup Damodar Goswami, who has explained them to Raghunath Das Goswami, who has repeated them to me. Whatever little I have heard from Raghunath Das Goswami, I have described in this book, which is presented to all devotees. This is the way of receiving the precious jewel among all kinds of spiritual realizations. तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?